ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। ਅੱਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਹਨ ਅਮਰ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹਨ ਤੇ sikhtherapy.com ਦੇ ਬਾਨੀ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਗਿਲਾਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਰੇਸ਼ ਗਿਲਾਨੀ ਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਗਿਲਾਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ। ਸਿਰਫ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿਵਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਹਨ ਔਰ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਿੰਧੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਕੇ बहुत मान महसूस कर रही हाँ। सो सुरेश गिलानी जी, प्लीज आप अपने बारे में कुछ बताएं, जब आप दुबई आए और आपकी जर्नी कैसे रही। सत श्री अकाल, नमस्कार, जय झूलेलाल। मैं इंडिया से बड़ौदा शहर 1976 में पहली बार दुबई आया। उससे पहले दुबई आने का बहुत शौक था। अचानक मेरा वीजा आ गया तो मैं शिप में आ गया। इधर शिप में आया, 7 दिन का सफर किया। द्वारका शिप का नाम था। जैसे दुबई 1976 मार्च 24 को मैं उतरा, इतनी गर्मी थी इधर, इतनी गर्मी थी, डेजर्ट था। शिप दरिया के बीच में रुका। उसके बाद हम छोटे शिप में आके सिटी के अंदर आ गए, दरिया पे। वहां से जब बाहर आए तो गर्मी बहुत ही, डेजर्ट था बिल्कुल, किसी भी हालत में हम आ गए। सवेरे मैं 10 बजे पहुंचा। सेठ का आदमी लेने आया था। फिर जैसे नहा धो के फिर ड्यूटी पे लग गया। उनका कपड़े का दुकान था। ऐसे मैंने 3 साल जॉब किया। 600 दिरहम पगार थी। उसके बाद जॉब छोड़ के मैंने अपना ब्रोकरेज का काम शुरू किया, इलेक्ट्रॉनिक्स का। धीरे धीरे बढ़ता गया। मेरे अपने भाइयों को बुलाया, मेरे डैडी इधर ही थे, उनकी हेल्प मिली, भाइयों की हेल्प मिली और मैंने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोली। दुकान के बाद इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया। इसके बाद धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया और मैं काफी बाबा के नजदीक हूँ। बाबा नानक की दरबार हमने शुरू की यहाँ से अच्छे 70 साल पहले। हमारे जो अंकल है भाई मिस्टर आशीष राव जी, उनके भाई विक्योमल जी,
उन्होंने दरबार शुरू की थी छोटी जगह से, पार दुबई में। और दुबई वहां में, से हाँ हमने शुरू की, उसके बाद धीरे धीरे उनको बढ़ता गया, आज इतनी बढ़ गई है जो दुनिया भर में अपना सिंधी गुरुद्वार का नाम है। हालांकि हमने 2-3 साल पहले हमारे दुबई के शेखों हमारे पे मेहरबान है, उन्होंने जमीन दिया, बस ये सब खुश है अपने हिसाब से। और हमें भी यहाँ की लोकल गवर्नमेंट, पुलिस, सबका साथ बहुत अच्छा रहा है। दिन दुगनी रात चुगनी हम बढ़ते गए हैं सब परिवार। और हमारा जो नाम है गुरु बाबे में, वो अभी 2-3 मंदिर हो गए हैं इधर, तो अच्छी तरह चल रहा है, पब्लिक बहुत खुश है यहाँ। बल्कि सिंधी नहीं, पंजाबी, गुजराती, मलयाली सब एक साथ खुशी से रह रहे हैं। गवर्नमेंट का बहुत साथ है। और बाकी जो आपको पूछना है आगे आप पूछ सकते हैं। सुरेश, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो आप जब भी ये जो सिंधी अपना आपके साथ जो चंद्रशेखर जी हैं, ये आपके सहयोगी हैं, और इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इनका जो है बाबा नानक पे विश्वास है और ये भी आपका साथ दे रहे हैं बिजनेस में। तो मेरे को ये एक चीज मैंने देखी है कि जब भी कोई सिंधी परिवार का कोई भी फैमिली मेंबर जाता है किसी जगह, तो वो जरूर गुरु नानक दरबार गुरु घर देखता है, गुरुद्वारा का दर्शन करने जाते हैं पहले, और फिर वो जो है अपना कोई भी काम शुरू करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये कैसे आपको सिंधी परिवार के बारे में, कुछ सिंधी कल्चर के बारे में हम जानना चाहेंगे। देखो, हम सिंधी परिवार आपस में मिलजुल के रहते हैं और हमने एक संस्था स्थापी है, जो कोई भी इंडियन को कोई भी तकलीफ है, सिंधी सेंटर हमने खोल के रखा है, उनको हम हेल्प करते हैं। मैं यहाँ के मंदिर का ट्रस्टी हूँ, एक ही शमशान भूमि है इधर दुबई में, उसका भी ट्रस्टी हूँ, और अपना इंडियन स्कूल जो है उसका भी ट्रस्टी हूँ। तो सिंधी परिवार यहाँ कोई भी अपना इंडियन परिवार को कोई तकलीफ है, कोई फी नहीं भर सकता है, किसको कोई तकलीफ है तो हम उनको मदद करते हैं हमेशा की तरह से। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, मिस्टर श्रॉफ परिवार है, और 2-4 परिवार है, वो यहाँ के पिलर हैं, सिंधी कम्युनिटी के लीडर है और इंडियन कम्युनिटी के भी लीडर है। अच्छा, हमारे जो साथ में बैठे हैं मिस्टर चंद्रशेखर भाटिया, वो भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं मीडिया में, अपने इंडियन कम्युनिटी को बढ़ाने का अच्छा काम कर रहे हैं। कॉन्सुलेट के थ्रू, उसके थ्रू काफी प्रोग्राम कर रहे हैं, मीडिया में अटैचमेंट है। तो मैं अभी उसको दूंगा, उससे 2-4 आप बात कर लें, देखो क्या बोलते हैं। मिस्टर चंद्रशेखर जी, आप बात करें। हाँ जी, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, धन गुरु नानक झूलेलाल, जय झूलेलाल, नमस्कार। तो बहुत खुशी हुई चंद्रशेखर जी आपसे मिलके। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे, देखो, हम इतना ज्यादा मैं जो मैंने देखा है, मैंने बहुत सिंधी फैमिलियों के फंक्शन जो हैं वो मैंने अटेंड किए। यहाँ पे गुरु नानक देव जी का जब जन्म होता है, तो गुरपुरब होता है, तो हर घर में यहाँ पे बाबा जी का प्रकाश करते हैं, और गुरु नानक देव जी का जो जन्मदिन है वो इकट्ठे होकर मनाते हैं, और लंगर भी चलता है। सो ये सारी चीजें जो हैं, बहुत मुझे जो देख के बहुत खुशी भी हुई, और बहुत ज्यादा जो इस चीज का थोड़ा मैं चाहती हूँ कि हमारे जो सुनने वाले हैं उनको आपके कल्चर के बारे में, और थोड़ा सा जो सिंधी, जो कैसे बाबा जी से आपका लगाव हुआ, कैसे जुड़े आप सिंधी परिवार जो है बाबा नानक से। मैं पहले बता दूं, मैं सिंधी हूँ और ओरिजिनली फ्रॉम इंदौर से हूँ। और जो हमारे पिताजी या हमारे ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, कहीं भी दुकान पे जाते थे, ये जाते, तो इंदौर में सिंधी कॉलोनी में एक दरबार थी भाई प्रीतम दास की। वो पहले वहाँ पे माथा टेकते थे, और माथा टेकने के बाद में वो कोई भी शुरुआत करते थे अपने दिन की, वो दुकान में जाते थे, उधर जाते थे, अपना काम वाम शुरू करते थे। और वो दरबार गुरु नानक देव जी की थी। और हम कभी भी अगर कोई यात्रा पे जाते तो वहाँ पे शाम को हम लोग यहाँ पे एक पाठ साहब के ऊपर एक भोग पाठ साहब रखवा के आते थे, और जब यात्रा पूरी तो उसका भोग लगाते थे। जैसे हम लोग जब पहली बार दुबई में आए तो हम वहाँ पे पाठ साहब रखाया था, और जब 2 साल के बाद वापस गया
तो वो पाठ साहब का भोग करा के फिर नया पाठ साहब शुरू करा के। और सिंधी कम्युनिटी जो है वो गुरु नानक देव जी के साथ में पुराना है। तो गुरु नानक देव की आप अगर हिस्ट्री देखेंगे तो इट्स फ्रॉम सिंध और ये जगह में। पंजाबी लैंग्वेज जो ये बाद में शुरू हुई, लेकिन गुरु नानक देव जी कोई एक धर्म के नहीं है, वो सबके हैं। हमारे यहाँ ये नहीं बोला जाता है कि गुरु नानक देव जी सिर्फ सिखों के, नहीं। गुरुद्वारा जो एक ऐसी जगह है जहाँ पे 24 घंटे लंगर मिलता है, कोई भी आदमी वहां से बिना खाए पिए नहीं निकल सकता है। मुझे याद है करीब करीब 84 की बात है, जब हम लोग रात को 3 बजे कोई बुरहानपुर के इधर जा रहे थे, गुरुद्वारा मिला था और हम लोगों ने बड़ी भूख लग रही थी। वहां पे रात को 3-3:30 बजे उन्होंने पहले तो हमको चाय पिलाई, उसके बाद दाल और फुल्के वहां पे लंगर कराया। और कई गुरुद्वारे ऐसे हैं जो छोटी जगह पे वहां पे भी लंगर साहब चलता ही रहता है 24 घंटे। मतलब कहते हैं ना कि जो आएगा वहां बिना अन्न के खा के नहीं जा सकता है। जैसे शुरुआत भी हम कड़ा प्रसाद से करते हैं, वो भी एक अन्न देते हैं ताकि आपको अन्न है उससे पेट भी भरा रहे, वो मिठास रहे, जो कि आपकी बॉडी में एक एनर्जी रहे। तो ये गुरु नानक देव जी ने जो शुरू किया था उस समय कि एक 4 आने के अंदर अपना गुरुद्वारा, आज उसका ब्याज भी पूरा नहीं चल पा रहा है। तो दुनिया भर में इतने सारे गुरुद्वारे बन गए। और सिंधी कम्युनिटी का कोई भी शादी फंक्शन या गमी कुछ भी होती है तो गुरु नानक देव जी का पाठ साहब हम हमारे घर में रखवाते हैं। हम दुबई में आए इधर कई सिंधी हिंदी कम्युनिटी के लिए। हमारा GBA मिडिल ईस्ट है, मैं उसका चेयरमैन हूँ। ओएसिस ग्लोबल सोसाइटी उसका चेयरमैन हूँ। और कई जगह पे हम लोग ऐसे काम करते हैं कि जो कम्युनिटी के फेवर में, हम ये नहीं देखते हैं क्या है क्या नहीं है, हमारी कम्युनिटी है, हम उस कम्युनिटी के लिए बात करते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी ने सबके लिए काम करो, तो हम सबके लिए करते हैं, हम किसी के पर्टिकुलर एक के लिए नहीं करते। जैसे आप गुरुद्वारे में कोई भी जाएगा तो उसको ये बोलेंगे नहीं तो आप कौन सा, आप तो लंगर करके जाओ बस। सो चंद्रशेखर जी, आप जैसे अभी वहाँ की जो जिंदगी है, जैसे अभी तो बहुत चेंज हो गई। जबकि बात सुरेश जी कर रहे हैं, तब तो वहाँ कुछ भी नहीं था, खाली रेत ही थी वहाँ पे। तो उसके अगर आज दुबई को देखें तो बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो चुका है और बहुत दुनिया जो है वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये जो आप लोगों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से भी लोग बच्चे जाना चाहते हैं वहाँ पे, इंडिया से भी जाना चाहते हैं। तो आपको क्या कोई ऐसा कोई मैसेज आप देना चाहेंगे उनको कि कैसे वो जा सकते हैं और कैसे वहाँ मतलब कि अच्छी लाइफ गुजारने के लिए? मैं आपको एक बार, लोग बोलते हैं ना कि मरने के बाद आदमी स्वर्ग में जाता है। अब वो स्वर्ग तो हमने देखा नहीं, क्योंकि ना हम मरे हैं। जो मरने वाले गए हैं या जो ऊपर चले गए उन्होंने स्वर्ग देखा, हमको बताया ही नहीं। लेकिन अगर जीता जागता स्वर्ग देखना है तो आप यूएई और दुबई में आके देखिए कि यहाँ पे हर चीज ऐसी है कि मतलब आप जो भी आओ, अगर आपको 5 रुपए जेब में है तो 5 रुपए में आपको भरपेट खाना मिलेगा। अगर वो 5 लाख है तो 5 लाख का खाना मिलेगा। और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन बंधन नहीं है। और ऐसा मुल्क, ऐसा शहर जो आपको 24 घंटे वेलकम करता है। अगर आपको 1 रुपए की चाय भी चाहिए तो हमारे यहाँ पे चाय वाला आपको घर में डिलीवरी करके जाता है। एक दही भी मंगाते हैं तो हमारे घर में दही देने आ जाता है कि भाई एक दही आपके घर हम डिलीवरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक कल्चरल रिस्पेक्ट है वो बहुत बड़ा है। हिज हाइनेस जो है यहाँ के, उन्होंने उस कल्चर को बनाने के लिए आज दुबई, जो लोग बोलते हैं कि 65 एक डेजर्ट था, आज दुबई वर्ल्ड के अंदर इसको माइंड्स ऑफ गोल्ड कहा जाता है। तो वो गोल्ड कही जाते हैं इसको, वो गोल्ड ऑफ सिटी जो दुबई। अगर दुबई नहीं आया तो जिंदगी में गलती कर देता है। अच्छा, इसको कहूंगा कि आप कहीं भी जा रहे हो, आप वाया दुबई ट्रांजिट होके जाओ, 2 दिन जाओ। अगर 2 दिन बाद अगर दुबई में आप आ गए तो फिर आप दूसरी बार दुबई के बगैर कहीं ट्रांजिट करोगे ही नहीं। क्योंकि ये बड़ी अच्छी चीज है और दुनिया के लिए एक मैसेज है कि यहाँ पे 199 कंट्री के लोग रहते हैं और 199 कंट्री का खाना भी यहाँ मिलता है। यहाँ पे आप गुरुद्वारे जाओ, आपको गुरुद्वारे में लंगर साहब है, चाय के टाइम पे चाय मिलेगी, शाम को नाश्ता मिलता है, सुबह को ब्रेकफास्ट मिलता है, रात को आपको डिनर मिलता है और भरपूर सेवा। जो आपको वो नहीं बोलते कि आप हमारे यहाँ कुछ दो, हमारे यहाँ से लेके जाओ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कितने मजदूर भाई जो काम करते हैं, या जो भी बड़ा घर हो छोटा घर हो, गुरु का घर जो है ना वो एक घर ऐसा है
कि जिसके आगे सबका वेलकम है। हाँ अमर, इन्होंने जैसे बताया अमर, हाउ दुबई में जो अपने मजदूर लोग हैं वो भी वहाँ पे एक्चुअली जो आते हैं, और फिर वो काफी ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती है ना, हार्ड वर्क करना नहीं नहीं पड़ता नहीं, है। देखो, नहीं मगर नहीं नहीं, आप ये चीज तो गलत है। दुबई में कानून है कि आप 7-8 घंटे से ज्यादा किसी से भी काम नहीं लेते हैं यहाँ। अच्छा। आप 8 घंटे काम करो, अपना आराम से जाओ, कोई ये नहीं कि आपकी ड्यूटी पे आओ, ड्यूटी के टाइम पे जाओ। आपको खाना पीना सब अच्छा मिलता है। आप अगर देखोगे कि दुबई का जो रहन सहन, अगर एक मजदूर भी होगा ना, तो आपको साफ सुथरा और अच्छा मिलेगा। क्यों अच्छा मिलेगा? क्योंकि उसका आसपास का माहौल ऐसा है, खुशीनुमा माहौल है। अगर 1000 रुपये भी कमाता है, अगर 500 भी अपने घर में भेजता है, तो उसका पूरा घर चलता है। Hanji, in Dubai, as we're seeing now, many people are immigrating as well. So you have just given us quite inspirational stories. If we look at people that are coming as in immigrants from India as well as from everywhere else internationally, your story is very inspiring. Would you say that it's easy for us to come as British Indians or Indians from all over the world? Because as you've explained, that we have our religion there as well now. We can worship, we can go to the Gurdwara, we can go to the Mandir. There's a First good thing I tell you very frankly, Dubai is not looking for a religion or country or anything. They are looking for the human being. Everybody are welcome. If you apply visa now, within 20 minutes you will get your visa, and they are welcoming you very well. And Dubai government now started for business people, for community people, for old age people. Everybody they are giving the security, very good security, very good food quality. But everything you say, you cannot point out anything that Dubai is wrong. Dubai always the best. So would you say Dubai is the way forward? Would you say this is just you've been here for so long? Would you say Dubai is one of the places that is a good place to live because of all of the things that you have just mentioned? I think you not visit to Dubai. So yes, I have been. I love Dubai. We all love Dubai. Yes. So I everybody think wants to live in Dubai. So one time you do come Dubai, you see the world in the sea. Dubai government has made a Palm Island. So, Uncle G, is it really that good when you live there? Is it that good when you live there? Because we are all frightened of taking the big step. Yes. And you see the world's largest building in Dubai. Wow. You see the here garden. You see on the street flower. You have from anything you have intention in your mind. When you go out, you see the good flower and everything on the street. You feel very well. You forget whatever happened in your home. And when you go out, you're thinking that, oh, I have to do something for my family. And family have to enjoy everywhere in the world. Where I'm any country. हमारे नौजवानों के बारे में सिंधियत, हम जो सिंधी लैंग्वेज जो है, जो बनी थी इंडस वैली से, जो मोहनजोदड़ो, वो पाकिस्तान है, इंडस वैली का बड़ी हिस्ट्री, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। तो आप जब आएंगे दुबई तो मैं आपको उसे इंट्रोडक्शन कराऊंगा, अपने गुरुद्वारे ले जाऊंगा, मंदिर ले जाऊंगा, सबसे आपको अवगत कराऊंगा। जो आपने चीज नहीं देखी वो बताऊंगा। इधर अपना सिंध का पाया कैसे पड़ा और वो कैसे आगे बढ़े। थैंक यू सुरेश जी। वो अपना अमर ने जो एक क्वेश्चन आपके चंद्रशेखर जी से पूछा था, मैं उसको रिपीट करना चाहती हूँ हिंदी में भी, कि वो पूछना चाहते हैं कि जो हमारे नौजवान हैं यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, इंग्लैंड में हो चाहे इंडिया में हो, हाईली क्वालिफाइड हैं वो, है ना, तो यहाँ इंग्लैंड से भी वो जाना चाहते हैं कि दुबई ऐसा, वो आप सबको पता है कि दुबई का अभी बहुत ज्यादा लोगों को बहुत पसंद है दुबई, तो वो जाना चाहते हैं। नौजवानों के लिए आप क्या मोटिवेट करेंगे? वो पर थोड़ा डरते हैं जो है कि वहां जाके कैसे सेट होंगे, क्या वहां पे जो जॉब्स हैं वो उनको मिलेंगी और कैसे कैसे उनकी लाइफ होगी, तो थोड़ा स्टेप लेने से थोड़ा सा डर जाते हैं। तो आप उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं,
एवरीबडी इज वेलकम इन आवर कम्युनिटी। हमारा जो सिंधी सेंटर खुला हुआ है वो यही बातों, किसी को कोई मुश्किल है, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए या नॉलेज चाहिए, हम उसको गाइड करते हैं। हमने 2-4 तो प्लस उनको कॉन्सुलेट में भी हमारे आदमी है, वो गाइड करते हैं। So, Chandrasekhar ji, I want to ask you one question as well. Amar asked you as well that, you know, like our youngsters, they are highly educated, है ना? So they want to move to different countries now. Our young generation want to move away from, you know, like they want to learn from other countries, and, you know, they want to go there, have jobs there. So for Dubai, if they come to Dubai, and will they get the job, and is it secure for their life, like, you know, so for them to move from here and go there, have house there, have job there, is it safe? Sunnira, can't hear. Hello. Hanji. Yeah, you cannot say no safe. This is the 100% safe. The people, they come, they will feel very happy. They have taken the appointment on interview by online. They appoint. When the people come here, 1,000% safe, no need to think. And the job skill is here very high. If they are getting, for example, because highly qualified people need in Dubai, because we are international market and we provided the job here, 80% people are working. So I think they come here and they feel very good. And you see, everybody is coming here. When I come to Dubai in 1992, my salary was 1,500 dirham only. And after then I start working this, I have office this, after then I started some social work, and this one thing we are doing the many cultural program for the many community. And now we have opened the GBA Middle East, Global Business Federation, and Oasis Global Society. And we do the many people who is doing for the country, we honoring them. And not in the UAE, any country people, they come, we welcome. And education wise, Dubai is the welcome. Who is the good educated people, they are getting good salary and good opportunities. Okay, thank you so much. थैंक यू सुरेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ज्यादा बातें हमारे नौजवानों को भी बताई और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो अमर, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जब मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ था, सुरेश जी तब उन्होंने काम शुरू किया था। तो 1981 की बात है, मैं उस टाइम एयरपोर्ट पे काम कर रही थी मेडिकल सेंटर में, और मेरे थ्रू काफी लोग जो हैं वो वहाँ पे, क्योंकि मैं ट्रांसलेशन भी करती थी इमिग्रेशन के साथ उस टाइम। तो उस टाइम जो है सुरेश जी ने काम शुरू किया था। तो मेरा बड़ा बेटा जो है उसको जितने भी छोटे बच्चे के जो कपड़े जो इन्होंने गारमेंट का काम शुरू किया, तो इन्होंने लाके उसको गिफ्ट किए। तो तब से आज तक मैं इनको हम जानते हैं। तो जो जैसे इन्होंने तरक्की की है, जैसे इन्होंने मतलब कि एक छोटे से काम से शुरू करके, और आज पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है, पूरे वर्ल्ड में इनके जो हैं स्टोर्स हैं, और ग्रानी इंटरनेशनल का नाम जो है बहुत मशहूर हो गया। तो मैं बहुत बाबा जी का धन्यवाद भी करती हूँ, गुरु नानक बाबा जी का, कि उन्होंने आपको इतनी तरक्की दी। तो आज आप आए, फिर भी आपने हमारे साथ जूम हमारा कुछ मुझे याद है, मगर मैं वही बोल रही हूँ कि ये जो आपकी वो चीजें जो है, मैं आज वही बोल रही हूँ कि ये नौजवानों के लिए भी ये एक मैसेज है कि कैसे आप अगर गिव अप नहीं करते हो, आप मेहनत करते हो, तो एक दिन आपको जरूर जो है ना उसका फल मिलता है। और बाबा जी को, गुरु नानक देव जी के उसके वचनों को, उनके जो उन्होंने जो बताया उसको फॉलो करना, और हमेशा बाबा जी की उसमें रजा में रहना, ये आपके अंदर बहुत गुण हैं। तो थैंक यू, आपका बहुत हम्बल हो, बहुत डाउन टू अर्थ भी हो। आप इतने ऊंचा आपने तरक्की की, उसके बावजूद आप जो है कोई मुझे हेसिटेट नहीं हुआ आपके साथ बात करने में। सो थैंक यू सो मच। एंड हम आपको जो है ना अमर, सो थैंक यू सो मच हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। थैंक यू। आपके नानक नाम जहाज है, चढ़े सोतरे पार। हाँ जी, जोक्स कर से गुरु पार उतारन। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू जी।